प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ एक्ट के खिलाफ एससी में दाखिल की याचिका। बेंगलुरु में वैवाहिक विवादों के बीच लेनोवो के मार्केटिंग मैनेजर ने किया सुसाइड। एम्पुरान प्रोड्यूसर गोकुलम गोपालन से कोच्चि स्थित ईडी ऑफिस में हो रही पूछताछ। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पूर्व बीएसपी नेता और कैबिनेट मंत्री रहे दद्दू प्रसाद। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल मर्डर्स को सिविल मामलों में बदलने पर यूपी सरकार को फटकार लगाई। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर कर्नाटक के हुबली से है, जहां विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने मुरुसावीर मठ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो अक्सर कहते हैं कि हम ही वो लोग हैं जिन्होंने भिक्षुओं को पैसा दिया है। मैंने 3000 भिक्षुओं से मुलाकात कर उन्हें हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित किया। प्रभु का आशीर्वाद हम पर और हमारी संस्थाओं पर शुरू से ही रहा है। ये खबर कर्नाटक के हुबली से सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल आज मुरुसावीर मठ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने भिक्षुओं को पैसे दान किए। उन्होंने इस दौरान कहा कि मैंने 3000 भिक्षुओं से मुलाकात कर उन्हें दान दिया है। साथ ही उन्होंने इन भिक्षुओं को अपने कार्यक्रम में आमंत्रित भी किया है। सुनिए। ಈ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಏನು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಹುಣ್ಚಿಕಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾನೆ. ಇದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ಕೇಳ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಪರ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರ ಪರ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾರು ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಬಂದಲ್ಲ, ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಚಲೋ ಮಂದಿದ ಹೆಸರು ತೊಗೋಬೇಕತ್ತ ಮಠದಾಗ ನಿಂತೀವಿ. ನೀವು ದುಷ್ಟರ ಹೆಸರು ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ನಡ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರಾವಣ ದುರ್ಯೋಧನ ಯಾರದ. ಈ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ನೋಡುನಲ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಭರವಸೆ ಏನಾರ ಆಗಬಾರ್ದು. ರಾಜಕಾರಣದಾಗ ದೇವರಾಜ ಅರಸರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಐತ್ರಿ, ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಐತಿ, ಜೆ.ಎಚ್. ಪಟೇಲ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಐತಿ. ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಲ್ರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಐತಿ, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವ್ರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಹೋಗೋದೇ ಒಂದು ದಿವಸ. ಇದು ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಮೊದಲು ವಿಜೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡತ್ತೇಳ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ಯಾನ, ನಮ್ಮ ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಹೇಳ್ರಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಯಾರಿ, ನಮ್ಮ ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ನೀ ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ ಆಗ್ಯಪ್ಪ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿದ್ದೆ, ನಾವು ಏನಾರ ನಾಗರಾಜಗೌಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀನು 30,000 ಲಗ ಹೊಡಿತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಮೊದಲು ವಿಜೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲಿ, ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಬ್ಬರು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ದಂಬಿದೆಯಾ ವಿಜೇಂದ್ರ? ಇಂಥ ಹಂದಿಗಳಿಂದ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀವಿ ವಿಜೇಂದ್ರ? ಹಾಂ, ತಾವೊಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ SC ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡೋ ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವಿಜೇಂದ್ರ? ನಿನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣಿಗೆ ನಿನಗೆ ದಮ್ಮಿದ್ರೆ ನೀನು ನನಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ. ನನಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳ್ತಿಯಲ್ಲ, ನೀ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡು. ಶಿಕಾರಿಪುರಕ್ಕೆ ನೀ ಕೊಡು, ವಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ನಾ ಕೊಡು. ಬರೀ ಭಗವ ಜಂಡ ಮ್ಯಾಗ ನಾ ಆರಿಸಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಮುಸಲ್ರ ಹೋಟೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿನ, ಸಾಬ್ರ ಹೋಟ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ರೆಡಿ, ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ. ದಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೇಳತ್ತೇಳ್ರಿ ಅವನಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನಾನು BJPಯಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ, ದಾಖತ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗೆದ್ದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ, ಬಾ ನೀನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡು, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀ ಹಂದಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು. ಹಂದಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಆಡ್ತಾವೆ, ಅವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಈ ಒಂದು 3000 ಮಟ್ಟದ ಪೂಜ್ಯರನ್ನು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಗೋಬೇಕು, ದರ್ಶನ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥೆ 126 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಜಾಪುರನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳು, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳು, ಗೋಶಾಲೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದರ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾವೊಂದು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರವಚನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲಿತ್ತು. ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಭವನ ಅಂದರೆ ಊಟದ ಹಾಲು, ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ, ಬಿಜಾಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಅನೇಕ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬಿಜಾಪುರ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಪಾಪ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕುಡಿ ನೀರು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಥಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸುಮಾರು 1000 ಮಕ್ಕಳು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸವನ್ನು ಶ್ರೀ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜ್ಯ 3000 ಮಠದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಂದು ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ, ಯಾಕಂದರೆ 3000 ಮಠದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಭಾಳಷ್ಟು 10 ಪಟ್ಟು ದ್ವಿಗುಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲೇದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಶ್ರೀ ಸೌಹಾರ್ದದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು 3000 ಪೂಜ್ಯರು ಮತ್ತು ಗದಗದ ತೋಂಟದಾರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅವರು 17-18 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ಸಿದ್ಧಶ್ರೀ ಸೌಹಾರ್ದ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿ ಸುಮಾರು 4100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ 160 ಶಾಖೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 3000 ಪೂಜ್ಯರ ಒಂದು ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ನಾವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾವೇರಿ, ಗದಗು, ನಮ್ಮದು ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರ ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅವರ ಕೈ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಮೃತದ ಕೈ ಇದೆ. ಅಂಥವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಳೀತವೆ, ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆ ಕೊಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರನ್ನೂ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೊಪ್ಪಳದ ಶ್ರೀಗಳು ಮತ್ತು 3000 ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಅವತ್ತೇ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 3000 ಮಠದ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾಸೋಹವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಪೂಜ್ಯರ ಒಂದು ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದೀವಿ. ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪೂಜ್ಯರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪೂಜ್ಯರನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಂದಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಯಾರ್ದೈತಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗುರ್ತೈತಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವೇನು ಭಾಳ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಭಾಳ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಪೂಜ್ಯರು ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां सरायपाली वन विभाग ने अवैध वन जीवों के शिकार करने वालों के विरोध बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि गांव पोटापारा में कुछ लोगों ने जंगली सुअर का अवैध तरीके से शिकार किया, जिस पर वन विभाग को सूचना मिलते ही तत्काल टीम गठित कर घटनास्थल भेजा गया और जांच शुरू की गई। वहीं पूछताछ करने के बाद सभी आरोपियों के ऊपर वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही कर न्यायालय में पेश किया गया और उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि ये पूरी कार्यवाही वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रत्युष टांडे और वन विभाग की पूरी टीम ने किया। खबर पोटापारा गांव से है, जहां कुछ लोगों ने जंगली सुअर का अवैध तरीके से शिकार किया, जिस पर वन विभाग को इस बात की सूचना जैसे ही मिली तो वन विभाग मौके पर पहुंची। वहां टीम गठित कर घटनास्थल पर टीम को भेज दिया गया और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपियों के ऊपर वन
संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही कर उन्हें न्यायालय में पेश किया और उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। यहीं आपको बता दें कि पूरी कार्यवाही वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रत्युष टांडे और वन विभाग की टीम ने की। सर, आज वन विभाग के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, कई लोगों को पकड़ा गया है, क्या है पूरा मामला? अभी सरायपाली के अंतर्गत कोटापारा एक गांव है जहां पे अपने को मुखबिर की सूचना मिली थी, मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है वन्य प्राणी जंगली सुअर का शिकार करने को गए थे और उनका मांस ला करके घर पे पका करके खा रहे हैं। सूचना के आधार पर हमारी टीम मौके पर गई, घर की तलाशी ली गई तो मौके से कुछ सामान मिले हैं, हड्डियाँ मिली और अपराधियों का भी पकड़ करके वन परिक्षेत्र कार्यालय है। उन पे जो है वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 51 और 216A, 39A और 39AC और 49(1) के तहत जो है विवेचना जारी है और इन्हें जो है पकड़ करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जिन्हें आज शाम तक जेल के लिए भेज दिया गया। सर, कुल कितने आरोपी पकड़े गए हैं और क्या वो आतंकवादी इस तरह के अपराधी हैं? हाँ, जिसमें से 4 अपराधी पकड़े गए और सभी जो है कोटापारा के निवासी हैं और इनमें से एक जो है वो आदतन अपराधी है। तो क्या सर वन्य प्राणी शिकार के औजार भी या कुछ सामग्री? खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सामने आ रही है, जहां नैसारे गांव के पास रविवार को ड्राइवर को झपकी आने के चलते तेल भरा हुआ एक टैंकर सड़क के किनारे पलट गया, जिससे पूरा तेल सड़क पर फैल गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही भारी मात्रा में लोग अपने घरों से तेल लेने के लिए पहुंचे। इसका साथ ही काफी देर बाद सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को काबू में किया गया। बाबू क्या लिए हो? तेल। कहाँ से ले आ रहे हो तेल? नैसारे ले। नैसारे? कैसा नैसारे? ट्रैक्टर बड़ा था, पलट गया था तो गड़ाम गिर गया था। हाँ, तो इधर ले रहे वही लेके आ रहे हो? हाँ। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम पड़ेगा लोक शंकर पांडे। और यहाँ आज भीड़ लगा हुआ, किस प्रकार का भीड़ है ये? यहाँ पर एक पोखरा था पुराना, यहाँ हाँ। पे लोग मर मैदान करते हैं, जानवर मरे हुए फेंके जाते हैं। जो एक ट्रक था वाराणसी से होकर के गोरखपुर की तरफ जा रहा था सरसों का तेल लाद के, जो कि नींद की वजह से पलटी मार गया है और गांव वाले उसको उठा के लेके घर जा रहे हैं। खतरे का समय है, 2:15 की ये गाड़ी पलटी हुई है। अभी तक यहाँ पर कोई प्रशासन का कोई आदमी आया नहीं है। अब धीरे धीरे लोग आना शुरू कर रहे हैं, तब तक यहाँ पर बहुत सारे लोग लेके जा चुके हैं तेल। और क्या ये गढ़ई बहुत पुरानी है क्या? पुरानी गढ़ई है और यहाँ पर आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं और इसमें मरे हुए जानवर फेंके जाते हैं, लोग मल मैदान करते हैं। क्या नाम है आपका? बाना। ये किस प्रकार का भीड़ है मैडम आज? तेल गिरल है कड़ू का, बनारस से गाजीपुर जाते रहना। अच्छा, तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं? पूरा जलौर में बढ़ जाता और में तेल गिरल है और पूरा जनता तेल उठावत हुए 2 बजे रात के पलट गई है। अच्छा, ये तेल उठा रहे हैं लोग? हाँ, ये तेल ले जाएंगे घर खाने पीने के लिए? खाए पिए खातिर तेल ले जाता है। ठीक है। कहाँ से पाई हो? कहाँ से? गढ़ई से? बहन जी, क्या ले रही हैं आप? क्या नाम है आपका? क्या ले रही हैं?
क्या ले रही हैं आप? कहाँ से मिला ये तेल? अगली खबर का रुख करेंगे। अमेठी क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल दुबे आजाद के निर्देश पर पूरे जिला कार्यकारिणी विस्तार के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। ये बैठक जगदीशपुर डाक बंगले पर आयोजित की गई। बैठक में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के साथियों द्वारा गंभीर चिंता जताई गई। क्रांतिकारी पत्रकार परिषद अमेठी इकाई के जिला महासचिव अखिलेश शुक्ला ने क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के साथियों पर बढ़ते हमलों, झूठे मुकदमों और धमकियों के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाया। खबर अमेठी से सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल दुबे ने एक बैठक का आयोजन किया है। ये पत्रकारों के साथ उन्होंने एक बैठक की और ये बैठक जगदीशपुर डाक बंगले पर आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्य मुद्दा ये था कि किस तरह पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। पत्रकार परिषद के साथियों द्वारा इस पर गंभीर चिंता जताई गई। क्रांतिकारी पत्रकार परिषद अमेठी इकाई के जिला महासचिव अखिलेश शुक्ला ने क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के साथियों पर जो हमले हो रहे हैं, जो पत्रकारों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और जो पत्रकारों को सच्चाई का साथ देने पर उन्हें धमकियां मिल रही हैं, इन सारे मुद्दों को उन्होंने उठाया। खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां बीजेपी के फायर ब्रांड नेता पूर्व विधायक संगीत सोम एमपी एमएलए कोर्ट पेशी पर सहारनपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश यादव को मुगलियाई शासक बताते हुए कहा कि 2012 में अखिलेश सरकार सनातन प्रेमियों को पिटवाने और जेल भेजने का काम किया करती थी। सुनिए। आज जनपद सहारनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में उत्तर प्रदेश के भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम पहुंचे हैं। सर, राणा सांगा के बयान को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और एमपी साहब ने कह दिया कि मैं कतई भी बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगूंगा। देखिए, अखिलेश यादव उन लोगों से माफ़ी नहीं मांगने देंगे और अखिलेश यादव को समझ में आ रहा है कि सनातनियों को जितना टारगेट किया जाएगा उतना उन्हें फ़ायदा होगा। ये राणा सांगा पर टिप्पणी करना, राणा सांगा वो योद्धा थे जिन्होंने 100 बार लड़ाई लड़ी, 80 घाव होने के बाद, हाथ कट जाने के बाद भी लड़ते रहे और ऐसे महापुरुष और ऐसे महायोद्धा पे टिप्पणी करना शर्मनाक बात है और अखिलेश यादव का अंत आ चुका है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब ये दलित बनाम जो है राजपूत लड़ाई करी जा रही है क्योंकि दलित के घर पर जो है हमला हुआ है। देखिए, अखिलेश यादव सनातनियों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। अखिलेश यादव मुगल शासक के आखिरी शासक थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अखिलेश यादव जिस चाल को चल रहे हैं, सनातनियों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। सनातनी आपस में नहीं लड़ेंगे। जो गलती करेगा, जो गद्दारी करेगा, उसे सजा मिलेगी। आखिरी सवाल, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि ईद के बाद एक बड़ा आंदोलन होगा और बीजेपी के नेताओं को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आप करके देखिए, ये सनातनी दौड़ा दौड़ा के मारेंगे आंदोलन करने वालों को, जरा करके देखिए। तो ये थे पूर्व विधायक संगीत सोम जो कह जाए कि आने तो दीजिए और फिर दौड़ा दौड़ा कर हम जो उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी, पल्स 24। क्या पूरा मामला रहा है? और देखिए, ये 2012 में जब यहाँ उत्तर प्रदेश में एक मुगलिया शासक होते थे जिनका नाम अखिलेश यादव था, वो उनकी सरकार में एक देवबंद में एसपी से AK-47 छीनी गई थी और मैं दावे के साथ कहता हूँ वो AK-47 100% आतंकियों ने छीनी थी और आतंकियों के ही काम आती भी होगी, चूँकि अखिलेश तो आतंकियों को पालते थे, इसलिए वो आतंकियों के काम आती थी। और उसी में एक लोगों के साथ झगड़ा हुआ था, मिरकपुर के लोगों ने पंचायत रखी थी, मैं उस पंचायत में आया था, तो उस मुगलिया सरकार ने मेरे ऊपर एक मुकदमा किया था। उसी मुकदमे की आज तारीख थी, उस पर मैं आया हूँ। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इसमें देखना क्या है, अगर एसपी की AK-47 छिन जाए और वो ना मिले तो इससे बड़ा आतंक का पर्याय कुछ और हो सकता है, आतंक का प्रमाण इससे बड़ा कुछ हो सकता है। अखिलेश यादव की सरकार में आतंकियों को पनाह दी जाती थी, आतंकियों को पाला जाता था, पुलिस की AK-47 छीन के सनातनियों को मारने के काम किया जाता था। मुकदमे आप लोगों के खिलाफ? मुकदमे चूँकि हम लड़ते थे, लोगों के साथ अगर खड़े नहीं होंगे तो कहाँ जाएंगे।
इसलिए हम लोगों के साथ खड़े होते थे और उस मुगलिया शासक पर हम लोगों के साथ मुकदमे होते थे। उसी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं रामजी लाल सुमन राणा सांगो को लेकर भी विवादित बयान दे रहे हैं। देखिए, रामजी लाल सुमन का नाम तो बिना मतलब में करा जा रहा है। ये तो अखिलेश यादव का बयान है और मैंने पहले भी कहा था, फिर आज कह रहा हूँ कि राणा सांगा पर टिप्पणी करना अखिलेश यादव के लिए कितना भारी पड़ेगा वो समझ नहीं सकते। इस देश का प्रत्येक सनातनी राणा सांगा का अपमान नहीं सह सकता और अखिलेश यादव को सबक सिखा के रहेगा। और रही बात ये, बहुत से लोग कह रहे माफ़ी मंगवाने, माफ़ी तो एक दिन में मांगेगा, माफ़ी तो एक दिन में मांगेगा, माफ़ी अखिलेश यादव को मांगनी पड़ेगी। आज जनपद सहारनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में उत्तर प्रदेश के भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगी सोम पहुंचे हैं। सर, राणा सांगा के बयान को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और एमपी साहब ने कह दिया कि मैं कतई भी बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगूंगा। देखिए, अखिलेश यादव उन लोगों से माफ़ी नहीं मांगने देंगे और अखिलेश यादव को समझ में आ रहा है कि सनातनियों को जितना टारगेट किया जाएगा उतना उन्हें फ़ायदा होगा। ये राणा सांगा पर टिप्पणी करना, राणा सांगा वो योद्धा थे जिन्होंने 100 बार लड़ाई लड़ी, 80 घाव होने के बाद, हाथ कट जाने के बाद भी लड़ते रहे और ऐसे महापुरुष और ऐसे महायोद्धा पे टिप्पणी करना शर्मनाक बात है और अखिलेश यादव का अंत आ चुका है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब ये दलित बनाम जो है राजपूत लड़ाई करी जा रही है क्योंकि दलित के घर पर जो है हमला हुआ है। देखिए, अखिलेश यादव सनातनियों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। अखिलेश यादव मुगल शासक के आखिरी शासक थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अखिलेश यादव जिस चाल को चल रहे हैं, सनातनियों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। सनातनी आपस में नहीं लड़ेंगे। जो गलती करेगा, जो गद्दारी करेगा, उसे सजा मिलेगी। आखिरी सवाल, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि ईद के बाद एक बड़ा आंदोलन होगा और बीजेपी के नेताओं को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आप करके देखिए, ये सनातनी दौड़ा दौड़ा के मारेंगे आंदोलन करने वालों को, जरा करके देखिए। तो ये थे पूर्व विधायक संगी सोम जो कह दिया कि आने तो दीजिए और फिर दौड़ा दौड़ाकर हम जो उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी, पल्स 24। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।